Hello students, I am Jatin with you in another session for CAT 2021. In this series we already have done I think 4 sessions, right? This is the 5th session. In the first 3 sessions the prime target was tournament, knockout tournament, round robin tournament, football tournament. Then I think on Wednesday we have done a session on quantitative aptitude, quantitative based DI, and today we are going to cover logical or the maximum minimum based DI. So I have taken 2 DI sets today. Let's see how many of these we can discuss in this small session. So guys, एक बार confirm करना, am I clearly audible, clearly visible? Is everything fine guys, and all you are there? And do me just one favor, copy the link and share it on your WhatsApp, on your Telegram groups, so that these students, right, can also be aware that Jatin sir is live. Yes, so guys, let me start the session then. Today we are going to cover logical maximum based DI, and I have taken 2 sets, one from the CAT 2005 and one from CAT 2008. Both of the DI sets were class, the best of the DI set to start or to understand the basic pedagogy of maxima and minima. Okay, let me start with the session guys. Something is not right, I believe. Just a minute guys, just wait for a little 2 seconds. Okay, let me correct this stuff. Let me delete all transitions. Done guys. Okay, so I am here for you guys. This is a basic thing I always request. Please do like and share the session with your friends so that maximum student can get participated, can join the session. And if you're watching me for the very first time on this CAT channel of GradeUp, do subscribe the channel, and put it in the comment box if there is any query, any confusion, any question in your mind, right? And do like the session if you have understood everything and you enjoyed the session. These are the 2 batches we have recently started. One is CAT 2022 batch, in which fortunately I am here as a quant faculty. Vikas sir is there and Sanojam is here. CAT 2022 batch, and then we have another Maharashtra CET batch which is taken by Pranav, Sanojam and Vikas Deya sir. These are the 2 special sessions. Both of them incidentally are Maharashtra CET 2018 and 2017 toppers. I mean to say one of the toppers, right? And the session is on 17th of July and on 17th of July. Yes, both the sessions are there on 17th of July. Okay, so everything fine? Yes. So are we ready for the question guys? These are the batches which are starting in the month of July. The one batch is already scheduled to start from 12th of July, and the few other batches are already planned in this particular month. And these are not the only batches, there can be few more batches as well, right? This is a small data set guys. Just read the data set and try to figure out all important point on your paper. Just try to note everything on the paper, every important point. For example, the first important point is the maximum marks is 50. So in every sectional test, in every section, the maximum marks is 50. You can note it down on the paper as well. Okay, the table give aggregate as well as sectional cutoff. Matlab, these all numbers written here are the sectional cutoff, and this is the aggregate cutoff. मतलब दोनों तरह के cutoff है शायद, fixed by 6 different colleges affiliated to university. It can be I am A, I am B, I am C, I am D, something like this. Okay, college 1, college 2, college 3. The student will get admission only if he get marks greater than or equal to the cutoff marks in each of the section. सारे sectional cutoff निकलने चाहिए
एंड एग्रीगेट कट ऑफ भी निकलना चाहिए. सो एग्जैक्टली सिमिलर टू the MBA exams where you have to clear the sectional cutoff as well as the overall cutoff. So you understood the meaning of this. Now just tell me one thing. There is nothing specified here. Changing color to red. There is nothing specified here. What does it mean? Does it mean the section D cutoff is not given, or there is no sectional cutoff in section D? So to figure it out properly, I read the whole data set once again. It says the following table gives the aggregate as well as sectional cutoff marks fixed by 6 different colleges affiliated to university. So by reading this line, I got a sense that they did not say anything about कि ये इंफॉर्मेशन पार्शियल है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है. उसने क्लियरली मेंशन किया कि इस टेबल में वो सारे कट ऑफ हैं जो एक कॉलेज ने स्पेसिफाई किए हैं, सेक्शनल एज वेल एज एग्रीगेट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस कॉलेज में, मतलब कॉलेज 1 ने बोला है कि मैं सेक्शन डी से कोई मतलब नहीं है, कॉलेज 2 ने बोला है मैं सेक्शन ए से कोई मतलब नहीं है, आप बस सेक्शन बी और सेक्शन सी के कट ऑफ निकालो. तो दिस इज समथिंग लाइक जैसे एक्सेलराई का एग्जाम होता है, एक्सेलराई में एक सेक्शन होता है जीके का, जिसका कट ऑफ है, जिसका स्कोर सिर्फ एक्सेलराई अपने लिए यूज करता है और कोई कॉलेज उस स्कोर को यूज नहीं करता है. सो माइट बी पॉसिबल दैट different colleges have sectional cutoff for different sections, right? Not necessarily that every college has a cutoff for every section. ऐसा उन्होंने specify कर दिया है. That means there is no sectional cutoff in all these blank areas. Is this clear? And this is a language exactly taken from one of the CAT paper. So I think it is very precise. We understood one thing, right? Now let's look at the question number 1. Go through with it, guys. I am waiting for you for 30 seconds. I mean 1 minute. At least you read the question. Bhama got the call from all colleges. What could be the minimum aggregate marks obtained by her? सारे कॉलेजेस से कॉल आया तो कम से कम कितने नंबर उसके होने चाहिए? ठीक है. और आपको पता है कॉल तभी आएगा जब सेक्शनल एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ निकलेंगे. तो अगर मैं एग्रीगेट कट ऑफ देखना शुरू करता हूं तो हाईएस्ट कट ऑफ यहां पे 180 है. तो इफ ए स्टूडेंट हैविंग लेस देन 180 मार्क्स एग्रीगेट, उसे कम से कम कॉलेज 5 से तो कॉल नहीं आएगा. और यहां पे लिखा है ऑल 6 कॉलेजेस, ऑल कॉलेजेस. इसका मतलब 180 से कम आंसर तो नहीं हो सकता. ये तो एग्जामिनर भी जानता है. देखो उसने सारे ऑप्शन 180 से बड़े रखे हैं. ठीक है. तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि एग्रीगेट 180 या उससे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. क्या 180 मार्क्स लाने वाले हर बच्चे को कॉल आ जाएगा सारे कॉलेजेस से? टेल मी. Any student scoring 180 marks will get the call from all the colleges? Forget the all colleges. Let's talk about college 5. सोचो अगर किसी बंदे का 180 मार्क्स है जो उसका है 50, ठीक है, 40, 50, 40, ए ब्रेकअप है मान लेता है, तो क्या उसे कॉलेज 5 कॉल करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि कॉलेज 5 कह रहा है सेक्शन ए में 45 मार्क्स होने चाहिए, उस बेचारे के 40 मार्क्स है. तो इवन इफ उसके 180 नंबर आएंगे उसे हो सकता कॉल ना आए. तो हमें एक चीज समझ आ गई, हर वो बच्चा जिसका 180 नंबर आएगा उसको सारे कॉलेज से कॉल आएंगे नहीं. तो हमें क्या देखना पड़ेगा? सेक्शनल कट ऑफ. आप मुझे बताओ अगर मुझे सेक्शन ए का कट ऑफ क्लियर करना है तो कम से कम कितने नंबर मेरे होने चाहिए जिससे कोई भी कॉलेज मुझे रोक ना पाए? 45 नंबर होने चाहिए. अगर मुझे सेक्शन बी का कट ऑफ निकालना है फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस तो मेरे कम से कम 45 नंबर होने चाहिए. सेक्शन सी का कट ऑफ निकालना है कम से कम 46 नंबर होने चाहिए, हर कॉलम का हाईएस्ट नंबर. सेक्शन डी का कट ऑफ निकालना है कम से कम 45 नंबर होना चाहिए. मतलब अगर मेरे मार्क्स 45, 45, 46 और 45 हैं इन ईच ऑफ द सेक्शन इन द गिवन ऑर्डर, मेरा एग्रीगेट मार्क्स 181 ऑलरेडी बन गया, तो मुझे सारे कॉलेजेस कॉल कर देंगे. ठीक है. सो दिस वाज अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू थिंक लॉजिकली.
That's what I'm calling it is logical DI. I cannot categorize this question into LR. लॉजिकल रीजनिंग में तो इसे डाल नहीं सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में है, ठीक है। और वैसे भी कैट में DI और LR सेग्रीगेट नहीं है, सब मिक्स है, सब मिक्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको समझ आ गया? एवरीवन गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ एग्जैक्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द कैट पेपर, आई थिंक 2008 एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ली गॉट द कॉल फ्रॉम 2 कॉलेजेस, 2 कॉलेज से कॉल आया, व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन द सेक्शन। उसे 2 कॉलेजेस से कॉल आया तो कम से कम कितने नंबर होने चाहिए किसी एक सेक्शन में? कहीं से ध्यान से देखना, इन अ सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन में, ठीक है। तो क्या करें बताओ? मेरे ख्याल से सबसे कम एग्रीगेट कट ऑफ है 171, ठीक है, और दूसरा सबसे कम एग्रीगेट कट ऑफ है 175, ठीक है। तो अगर उसे 2 कॉलेज से कॉल चाहिए तो हम बोलेंगे उसे एग्रीगेट 175 तो लाना पड़ेगा, एग्रीगेट 175 तो लाना पड़ेगा, तो उसे कॉलेज 2 और कॉलेज 3 से कॉल आने के चांस है। अब ध्यान से देखना, कॉलेज 2 और कॉलेज 3 से कॉल आने के चांस हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं? 4, ठीक है। पहले सेक्शन में कोई कट ऑफ नहीं है, मान लेते हैं 0 नंबर आया, सोच रहे हैं भी, ठीक है। सेक्शन बी में एक कॉलेज का कट ऑफ 45 है, 45 रख दिया। सेक्शन सी में एक कॉलेज का कट ऑफ 46 है, 46 रख दिया। अभी ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें भी कोई कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आपका एग्रीगेट भी तो 175 होना चाहिए। चल मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे उसे 45 नहीं 50 दे दिया, तो 50, 45 एंड 46, 45, 46, 91, 91, 91 एंड 50, 141, 141 मार्क्स आने के बाद भी, 141 मार्क्स आने के बाद भी उसे अभी कितने नंबर और चाहिए गाइस बताओ? 141 मार्क्स आने के बाद भी कितने नंबर और चाहिए? इनफैक्ट अगर मुझे इस वाले सेक्शन को मिनिमाइज करना है तो एक काम करें, हम इस सेक्शन का मार्क्स 45 की जगह 50 कर लें, इसका भी 45 की जगह 50 कर लें। कोई कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, और कहीं से कॉल तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि और कहीं से कॉल आने के लिए 175 से ज्यादा मार्क्स चाहिए। तो यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो हमने यहाँ पे 50, 50, 50 भी कर लिया तो भी उसे कोई और कॉलेज कॉल नहीं करेगा। अभी तो कॉलेज 2 और 3 भी नहीं करेंगे। अब इसको बढ़ा दो, इसका जो 0 था इसे बढ़ा दो, इसे 25 कर दो। क्यों किया 25 हमने? सो दैट एग्रीगेट 175 हो जाए, 2 कॉलेज से कॉल आ जाए, मतलब किसी भी एक सेक्शन में उसके कम से कम कितने नंबर आने चाहिए? 25। व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्क्स इन एनी वन सेक्शन? 25। अच्छा, इज इट नेसेसरी कि सेक्शन डी में 25 है और सेक्शन ए में 50 है? नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है। इट कैन बी रिवर्स एज वेल। यहां पे 25 कर लो, यहां पे 50 कर लो। यू अंडरस्टूड हमने इनको क्यों बढ़ाया? वाई वी मैक्सिमाइज दिस? क्योंकि हमें किसी एक सेक्शन के मार्क्स को मिनिमाइज करना है, तो 2 को बढ़ाना पड़ेगा, 3 को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आई थिंक ये क्लियर है आपको? एक बार जल्दी से कमेंट में डाल के बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? एवरीवन? परफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम डेटा सेट, अगला क्वेश्चन। अरे यार, ये तो पूरे मजे ले रहा है। अब कह रहे हैं एक कॉलेज से कॉल चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकता है? एक कॉलेज से कॉल चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकता है? ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे। आगे देखें, कोई और सवाल है क्या? ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एक सवाल ऐड कर रहा हूं मैं इसमें। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, एक सवाल इसमें होना चाहिए था। आदित्य, जस्ट अ मिनट। डिडंट गेट कॉल
फ्रॉम एनी कॉलेज, एक मिनट, फ्रॉम एनी कॉलेज, एनी कॉलेज आउट ऑफ द गिवन 6 कॉलेज। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। इसके आंसर ऑप्शन मैंने हटा दिए, पहले इसको करते हैं फिर इस पे आएंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो, एकदम रिवर्स क्वेश्चन है ना। उसे किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आया, तो बताओ कि मैक्सिमम कितने मार्क्स उसके हो सकते हैं। ठीक है, सोचो एक बार, किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आया तो मैक्सिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले कॉलम पकड़ना शुरू करो। ऐसा कौन सा कॉलम है जो ज्यादा से ज्यादा कॉल्स को रोक सकता है, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स को रोक सकता है? सेक्शन सी, राइट। सोचो, अगर सेक्शन सी में किसी बच्चे के 41 नंबर आए, सोचना भी एक बार, तो वो कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 और कॉलेज 5 से कॉल नहीं ला सकता, इवन इफ उसके बचे हुए तीनों जगह 51, 50 मार्क्स आ जाए, राइट ना? समझ रहे हैं बच्चा लोग, एवरीवन? ठीक है, समझ गए, हाँ या ना? ठीक है, तो 50, 41, 50 उसे कहां से कॉल नहीं आएगा? गाइस टेल मी, उसे कहां से कॉल नहीं आएगा? ही विल नॉट गेट द कॉल फ्रॉम, एक मिनट, हाँ सोचो एक बार, मैंने कुछ ठीक किया है ना? हाँ जल्दी से बताओ, ये ऑप्शन यहाँ नहीं देने ना, क्योंकि ये तो मैंने नया क्वेश्चन ऐड किया है। हाँ, तो डिडंट गेट अ कॉल फ्रॉम एनी कॉलेज, तो 50, 41, 50 उसके 191 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और उसे कहां से कॉल नहीं आएगा? 1, 2, 3 और 5 से कॉल नहीं आएगा, मतलब अभी भी उसे कॉलेज 4 और कॉलेज 6 कॉल कर रहे होंगे। अब मुझे देखना है कि क्या करूं जिससे कॉलेज 4 और कॉलेज 6 भी कॉल ना करें। तो कॉलेज 4 और कॉलेज 6, एक बार जरा पकड़ते हैं इसको। कॉलेज 4 और कॉलेज 6, कौन सा कॉलम रोक सकता है कॉलेज 4 कॉलेज 6 को? सेक्शन डी रोक सकता है। और सेक्शन डी अगर हम चाहते हैं कि उसे इन दोनों कॉलेज से कॉल ना आए, तो मुझे इसके मार्क्स घटा के कितने करने पड़ेंगे? 43, बिकॉज 44 में तो कॉल आ जाएगा। अब जरा जोड़ना है इसको, कितना हो रहा है? 50, 50, 100, 100 एंड 84, राइट, तो 184। समझ गए? समझ गए? तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मार्क्स जिसमें उसे किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आया? 184। मतलब सोचो, एक बच्चा है जिसके 181 मार्क्स हैं, उसे सब जगह से कॉल आ गया था, और एक बच्चा है जिसके 184 मार्क्स हैं, उसे कहीं से कॉल नहीं आएगा। भाई शनि की दशा भारी रही होगी नहीं उस पर, टाइप। ठीक है, आपने देखा था ना यहाँ पे 181 में उसे सब जगह से कॉल आ गया था, ऑल 6 कॉलेजेस। और अभी आप कह रहे हैं कि 184 में ऐसा हो सकता है कि उसे कहीं से भी कॉल ना आए। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 184। ये समझ आ गई बात? एवरीवन? एवरीवन, यस और नो? आप और भी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे अगर मुझे 41 मार्क्स मैंने अगर दिए, सबसे छोटा नंबर यहाँ 42 है, तो 3 कॉलेज के कॉल रुकेंगे। यहाँ पे अगर मैं 40 नंबर दूंगा तब 3 कॉलेज के कॉल रुकेंगे, और यहाँ पे जब मैं 41 नंबर दे रहा हूँ तो 4 कॉलेज के कॉल रुक रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा तो यही है ना कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के कॉल भी रुक गए। हमें तो यही सोचना था, मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स निकालने थे और उसे कहीं से भी कॉल नहीं आना चाहिए। अब जब तुमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान हो गया। 50, 50, 41 और 40, यही किया था। इसमें उसके पास एक भी कॉल नहीं था, नो कॉल। अब सोचो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर कितना इजी हो गया। अब गॉट द कॉल फ्रॉम एग्जैक्टली 1 कॉलेज, एक ही कॉलेज से कॉल आया है आउट ऑफ द गिवन 6 कॉलेजेस।
what could be the maximum aggregate marks obtained by him? मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। इसका मतलब एक कॉलेज से कॉल चाहिए। अगर मैं इस 41 को बढ़ा के 42 कर दूं तो उसे कॉलेज 1 से कॉल आ जाएगा। या मैं इस 41 की जगह 41 रहने देता हूं, इसको बढ़ा के 44 कर दूं तो उसे इस वाले कॉलेज से कॉल आ जाएगा। मतलब कहीं भी अगर मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूं, या तो सेक्शन सी में या सेक्शन डी में, तो हमारा काम चल जाएगा। आइदर सेक्शन सी और सेक्शन डी, तो हमारा काम चल जाएगा। राइट ना एवरीवन? चेक कर लो एक बार। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गाइस 185। इनको जोड़ोगे तो 185 आएगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 185। तो अब आपने देखा, मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि मैक्सिमा का मतलब है एक जगह मार्क्स बढ़ेगा तो दूसरी जगह मार्क्स कम होगा। मिनिमा का मतलब है एक जगह कम होगा तो दूसरी जगह बढ़ेगा। इज दिस क्लियर गाइस? ईच वन ऑफ अस? ओके, so let's take another example of maxima and minima. Oh my God, people, बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। कोई नहीं, अब डरो मत, एक बार इसे तसल्ली से पढ़ लो। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, ठीक है? दिख रहा है ना? ठीक है, एक बार आप इसे तसल्ली से पढ़ लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर पे नोट कर लेना। ये तो LR जैसा सवाल लग रहा है, नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ऐसे ही लिखा होता है ना अरेंजमेंट के सवालों में। okay? सारे स्टॉक की प्राइस 100 है, उसने एक एक स्टॉक ही खरीदा इन कंपनीज में से, और वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है 20, 10, 30 एंड 40, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ABCD। अच्छा चलो, कम से कम इतना उसने बता दिया कि ए वाला ऑर्डर फिक्स है, ABCD, ठीक है। 20% मतलब 20 रुपीज, 10 रुपीज, 30 रुपीज एंड 40 रुपीज। क्लियर? राइट? परसेंटेज को मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। इतना एक्सपेक्टेड है, इतना इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ये मैंने लिख लिया। डन गाइस? चलो आगे चलते हैं। फिर इसने बताया, ठीक है, बकवास वो तो हम जानते हैं सब। टू ऑफ दीज कंपनीज अनाउंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। इनमें से दो कंपनी है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। कौन सी दो है पता नहीं, और इनमें से कोई एक कंपनी जो है वो सीमेंट या IT से है। फिर से ध्यान से देखना, इसका क्या मतलब हुआ, जो दो कंपनी है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिया, इनमें से एक कंपनी सीमेंट या IT में से है, ठीक है, राइट, ठीक है। वाइल अदर बिलोंग्स टू आइदर स्टील और ऑटो इंडस्ट्री। दूसरी जो है या तो वो स्टील में है या ऑटो में है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जो हमें मिले हैं, ये मैं कैसे समझाऊं आपको, ये आप लिख लिए ना, मतलब लिख लेंगे इसे हम कहीं, ठीक है। सीमेंट और, एक मिनट, हाँ, तो एक हो गया सीमेंट और IT, और दूसरा हो गया स्टील और ऑटो इंडस्ट्री। स्टील और ऑटो इंडस्ट्री, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है, ठीक है। तो इनके रिटर्न ज्यादा हैं, हायर देन एक्सपेक्टेड है। फॉर द कंपनी बिलोंगिंग टू सीमेंट और IT विद एक्सट्राऑर्डिनरी गुड रिजल्ट, रिटर्न वाज ट्वाइस देन एक्सपेक्टेड। अच्छा, सीमेंट और IT का रिटर्न डबल है, डबल है, ठीक है, ये मैं यहां पे लिख दूं, सीमेंट और IT का रिटर्न डबल है। दिख रहा है ना ये आपको? नहीं यार, क्या करूं मैं, और छोटा हो जाऊं? थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूं अपने आप को, फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, राइट। और उसने बताया कि आगे बढ़ना, एंड फ्रॉम द कंपनी बिलोंगिंग टू स्टील एंड ऑटो इंडस्ट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिजल्ट वॉज 1.5 times।
तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 1.5 टाइम्स है, मतलब प्लस हाफ कहते हैं हम, एक्स्ट्रा हाफ, ठीक है। और डबल का मतलब प्लस 100%, राइट ना, उतना ही और, डबल का मतलब उतना और मिल गया, और 1.5 टाइम्स का मतलब आधा और मिल गया, ठीक है, समझ गए बात। चलो आगे लिखा, while the remaining two companies which did not announce extraordinary result, the returns are realized as same that was expected, as same that was expected, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, एवरीवन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं भी आपके सामने आ जाऊंगा, क्योंकि ये तो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, मेरी तो यही कॉपी है, यही नोट करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हमने सवाल नहीं देखे कि सवाल क्या है, ठीक है, सवाल देख लेंगे, बट अभी पहले इतना नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट गाइस, बस मैंने नोट कर लिया है शायद सब जगह। क्वेश्चन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब यू फील लाइक वाओ मजा आ गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल, और मैं वापस भी आ जाता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया सवाल है, मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा मुश्किल, मुश्किल नहीं है। अब देखो, मैंने बोला था ना, जो हमने कमेंट, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मिनिमम मिनिमम एक्सा करेंगे, वही कर रहे हैं। मिनिमम एवरेज रिटर्न वैंकट कुड हैव अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, मिनिमम रिटर्न चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कम से कम रिटर्न चाहिए, तो मैं उन कंपनीज के रिटर्न में उन कंपनीज के रिटर्न ज्यादा लेके आऊंगा जिनका रिटर्न छोटा है। जैसे अगर मैं देखूं 20, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा अगर, तो या तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आएगा या 10 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, समझ रहे हैं। 20 रुपए अगर वो सीमेंट या आईटी वाला हुआ, और 10 रुपए अगर वो ए प्लस हाफ वाला हुआ, ठीक है। यहाँ पे +10 या +5 मिलेगा, यहाँ पे +15 या प्लस, ओहो समझ गए ना, +30 या +15 मिलेगा, यहाँ पे +40 पूरा 100% एक्स्ट्रा या आधा एक्स्ट्रा मिलेगा, ये समझ गए। आधा क्यों, क्योंकि 1.5 टाइम्स। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कम से कम रिटर्न चाहिए, तो मैं सोचूंगा यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 5, ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, क्या मैं इसी के दोनों दोनों ले लूं, नहीं, ये समझना है, क्योंकि दोनों कंपनी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो हमें सोचना है कि हम इसका ले लेते हैं 5, और इस वाली रो का सबसे छोटा ले लेते हैं 20, तो या तो 20 और 5 25 लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं इसका, इस वाली रो का सबसे छोटा 10, और इस वाली रो का सबसे छोटा 15, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो हमारे रिटर्न एक्स्ट्रा आने वाले हैं। 400 रुपये तो टोटल इन्वेस्टमेंट था, 20 एंड 10 30, 30 30 60 एंड 40 100 रुपीज़ तो रिटर्न मिलने ही वाले थे, 25 रुपये और मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। मतलब आपका जो रिटर्न आएगा वो 125 रुपये रिटर्न तो आएगा ही आएगा किसी भी हालत में। तो व्हाट इज अ मिनिमम रिटर्न, 125/400 विच इज 31.25%। एक बार चेक करो, कौन सा ऑप्शन मारना है आपको, बी फॉर कांग्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी को कम से कम रिटर्न मिला, कम से कम रिटर्न मिला, तो आप मुझे बताओ कहां से डबल रिटर्न मिला। तो डबल रिटर्न मिल सकता है कंपनी ए से, और डबल रिटर्न मिल सकता है कंपनी बी से, समझ रहे हैं। मतलब अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, जो एक्स्ट्रा 25 रुपये हमारा रिटर्न आया, वो बी और सी की वजह से भी आ सकता है, और ए और बी की वजह से भी आ सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, प्लीज चेक इट आउट, और अगर है तो तुरंत पूछ के खत्म करो, अगर है तो तुरंत पूछ के खत्म करो, वेट मत करो। ठीक है,
एक बार डबल चेक कर लें कुछ हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 20 20 10 10 10 5 गाइस गलत हुआ है। कहाँ गलत हुआ है बताओ, कहाँ गलत हुआ है? हुआ है, कहाँ गलत हुआ है? हुआ है, देखो मुझे भी लग रहा था कि मैंने कुछ तो झोल किया है। हम एक चीज देखना भूल गए, है ना, हम इसको देखना भूल गए, यहां वाला 10 और यहां वाला 10, देखो राइट ना। तो ये पूरा आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा। तो 10 और 10, तो यहां पे कितना रिटर्न आ गया? 20, ठीक है, कितना रिटर्न आ गया? 20। मतलब आपका एक्स्ट्रा रिटर्न आ गया ये वाला 100 + 20 120। क्लियर? तो आई कैन से 120 इज अ रिटर्न ऑन टोटल 400। 400 कैसे आया पता है? हर शेयर 100 रुपए का था और उसने हर जगह से एक शेयर खरीदा था, यहां कहीं लिखा था 1 स्टॉक, और हर शेयर 100 रुपए का है, राइट? तो कितना रिटर्न आएगा? कम से कम 30%। आप देखो आंसर ऑप्शन कितने स्मार्टली प्लान किए गए हैं ना, एक छोटी गलती एंड खत्म। इज दिस क्लियर एवरीवन गाइस? परफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखना अगला वाला और खतरनाक होने वाला है, ध्यान से देखना। अब वो कह रहे हैं वेंकट का रिटर्न टोटल 35% आया। अब मुझे एक बात बताना, 35% रिटर्न का मतलब 35% ऑफ 400। क्लियर? मतलब आप कह रहे हैं 140 रुपीज आपको रिटर्न चाहिए, 140 रिटर्न चाहिए, जिसमें से 100 रुपए रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है, गारंटी है वो तो। 20 10 30 40 100 हो रहा था, ठीक है। आपको 40 और चाहिए, ठीक है। सो आप देखना जरा यहाँ पे 20 10 30 40, या तो 100% रिटर्न होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, ठीक है। आपको कितना और चाहिए? 100 के अलावा 40 और चाहिए। अब मुझे जरा देख के बताना ये 40 रिटर्न कैसे आ सकता है? 40 रिटर्न कैसे आ सकता है? आप इसका 20 ले लो और इसका 20 ले लो, राइट ना, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक तो आपको समझ आ गया ए वाला, और कोई तरीका है 40 आने का? कलर चेंज कर लेता हूं मैं, है ना। 10 के साथ यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, हाँ 30 के साथ यहाँ पे 10 मिल रहा है, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? 35% ऑफ 400 मतलब 140 आपको रिटर्न चाहिए, 100 तो आने ही आना है, 40 और चाहिए था, उसके दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, समझ रहे हैं गाइस? एक ए वाला बन रहा है, ठीक है, और एक दूसरा वाला बन रहा है। कलर चेंज करके मैं फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। अब जरा सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू? नेसेसरीली ट्रू मतलब हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए। एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि जो कंपनी बी है ना, उसने एक्स्ट्रा रिटर्न दिए ही नहीं है, ठीक है, और इसने लिखा है कंपनी बी डिड नॉट अनाउंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। इसका मतलब ये वाला तो पक्का पक्का सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चेक कर लो एक बार, ये वाला तो पक्का पक्का सही है, ठीक है। सो अगर सेकंड पक्का पक्का सही है मतलब ऑप्शन सी खत्म हो गया। अभी भी हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बच रहे हैं। फिर इसने बोला कि एक मिनट, कलर चेंज टू ग्रीन नाउ। कंपनी ए अनाउंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिजल्ट। क्या जरूरी है कि कंपनी ए का रिटर्न हमेशा अच्छा आए? हाँ, क्योंकि आपका दोनों कलर कॉम्बिनेशन में ए को रिटर्न एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, इसका मतलब ए भी सही है। अरे वाह, तो ये सही है। क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पे लिखा हो कि 1 2 3 1 2 3 4, तो और चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना फिर भी चेक कर लेते हैं, पढ़ने में कोई बुराई थोड़ी है, पढ़ लेते हैं। कंपनी ए बिलोंग्स टू आइदर ऑटो और स्टील। कंपनी ए बिलोंग्स टू आइदर ऑटो और स्टील। मैं मान रहा हूं कि कंपनी ए से रिटर्न अच्छा आया है, बट क्या इसका मतलब है कि इसे ऑटो या स्टील में होना चाहिए? नहीं, नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंपनी डी डिड नॉट अनाउंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिजल्ट।
इस केस में कंपनी डी ने अच्छे रिटर्न दिए तो एक क्वेश्चन मार्क है, हाँ भी और ना भी, तो ये भी गलत है। हमें नेसेसरीली ट्रू चाहिए, मतलब हमेशा सच होना चाहिए, राइट? क्लियर है गाइस, ऑल ऑफ अस? ठीक है, तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये वाला सवाल होमवर्क में दूं, बिकॉज जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे क्या फायदा होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताओगे, एवरीवन? ठीक है, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताओगे। आप लोग बता ही नहीं रहे हो जब से। डिड अनाउंस, ओहो, इसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अनाउंस किए हैं, मतलब सीमेंट और आईटी से है और इसने रिजल्ट भी अच्छा अनाउंस किया है, मतलब यहां पक्का पक्का 30 का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, राइट? राइट। अब यहां 30 का रिजल्ट आना ही आना है, तो यहां पे या तो 5 आएगा, या तो यहां पे 10 आएगा, या फिर यहां पे 20 आएगा। मतलब कंपनी का रिटर्न 33.75 से कम नहीं हो सकता। सही कह रहा है वो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कम से कम रिटर्न 35 एंड 100 135 का है, तो 33.75 से कम रिटर्न हो ही नहीं सकता। मैं गलत पढ़ लिया था सवाल, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, वैंकर्ट अर्न इतना रिटर्न ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसका मतलब यही वाला कॉम्बिनेशन लेना है हमें। कंपनी ए अनाउंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिजल्ट, नहीं, कंपनी ए के रिटर्न अच्छे आने ही नहीं है। फिर येलो कलर वाला पार्ट देखो, कंपनी बी का अच्छा आया, कंपनी सी का अच्छा आया, और कंपनी डी का अच्छा नहीं आया। वेंकट रिटर्न ऑन एवरेज, कंपनी बी बिलोंग्स टू आइदर ऑटो और स्टील। यस, इट हैज टू बी आइदर ऑटो और स्टील, क्योंकि तभी इसका हाफ आएगा, तो ए भी सही है। यार इतना इजी सवाल, अननेसेसरी में उलझ गया था इसमें। ठीक है, डन गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, है ना? मैंने क्या किया, मैंने इसे पढ़ लिया था डिड नॉट अनाउंस, इसलिए आंसर मैच ही नहीं कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि सारे ऑप्शन गलत है। क्लियर है गाइस, एवरीवन? परफेक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप जरूर इसे सॉल्व करके आएंगे, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट इन सम अदर सेशन। ठीक है, राइट। So let me tell you the few details. These are the batches, CAT 2022 and Maharashtra CET specific batch. These are the two special sessions, one both on the 17th of July, one at 3 p.m, one at 9 p.m. Do not forget to watch these sessions. These are the batches recently started. Sorry, these are the batches scheduled to start in a month of July. You can accordingly take your GradeUp subscription, GradeUp Super subscription wisely. These are the CAT courses which are currently running and other MBA exams as well. These are the top mentors at the GradeUp platform. You can see almost all the mentors are the toppers turned mentors category. This is a GradeUp Super subscription plan. We have two options, one for the student planning for CAT 2021 and one for the student planning for CAT 2022. सक्सेस की तैयारी, इसके लिए डिटेल्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर है यहाँ पे। एंड प्लीज डू लाइक द सेशन गाइस। इफ देयर इज एनी क्वेरी पुट इट इन द कमेंट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस GradeUp CAT channel. Bye bye guys, we'll see you, and start following us on Instagram, Facebook, Google Play. Download the Google app from the Google Play and subscribe our YouTube channel. Bye bye guys, we'll see you soon, and on Monday at sharp 9 p.m. in another session targeting Maharashtra CET.